So hello my dear friends, this is Learning with Ganesh, and today I am going to explaining you class 9 mathematics, that is R.S. Agrawal, and today I am going to explaining you exercise 9.2 question number 2. Earlier to this I have already explained you question number 1 and what are the basic rules for doing that. Just I have explained you in the previous video, just go to that and after that watch this. Now let us see what is question number 2. Question number 2 is E, F, G, H are the midpoints of the sides parallelogram ABCD, and we have to prove that one. Let us see the picture. The picture is A, B, C, D is a parallelogram, and E is a midpoint of AB, H is a midpoint of this, G is the midpoint of CD, and H is the midpoint of this. Now what we have to prove is that this is also parallelogram, whatever it is, the area of a, what we have to prove? We have to prove, here I am just writing, to prove. So this is exercise 9.2 and that is I am explaining question number 2. So what we have to prove, area of E, F, G, H is equals to half the area of A, B, C, D. We have to prove this one. Okay. So we have to prove area of EFGH. EFGH, the area of this inside figure is equals to half of this complete picture ABCD. This we have to prove. So how it will come? Let us see the process. So the very first process is that what are the things is given here. Now here simply nothing is given. Now what we will do in this picture, we will just join H and F. Okay, so we will join H and F. Okay, so we have joined H and F. So we will write here join H and F. Okay. Now here you see what happened. AD, this AD is equals to BC. Okay, this AD is equals to BC. We will write this one. AD is equals to BC and also AD is parallel to BC. Why? Because it is a parallelogram. Okay, since it is a parallelogram. Now what happened? H and F are the midpoints of AD and CF. This is the midpoint of this, this is the midpoint of this. That means AH is half of AD. Is it clear? So we will write, since H and F are the midpoints of AD and BC. So therefore AH is equals to half AD. Similarly FB is equals to half BC. Okay. So this AH is half AD and similarly BF is half BC, यानी BC का आधा ये है और AH AD का आधा है. Okay, so that means therefore here and AH is parallel to BF. That means AH is parallel to BF. क्योंकि ये और ये पैरेलल था तो ऑटोमेटिकली ये जो बचा पोर्शन भी इसका पैरेलल होगा ही. ओके, सो अब यहाँ पे हमको क्या मिला? ये तो ऑलरेडी पैरेलल था ही,
तो हमको मिला ABFH इज ए पैरेललोग्राम। सो ABFH इज ए पैरेललोग्राम। इस स्मॉल सिंबल है पैरेललोग्राम का। ओके, नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, जस्ट मैं बेसिक रूल फर्स्ट इसमें बताया था, अगर एक ही बेस में ट्राइंगल भी हो तब क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, इजंट इट। तब यहाँ पे हमको जो ट्राइंगल था AEF और पैरेललोग्राम जो था ABFH, ये दोनों एक ही बेस, सेम बेस पर HF में है और इन बिटवीन पैरेलल लाइन में है। उसी को हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट में। Since triangle HEF and a parallelogram ABFH, पिक्चर को देखते रहिए, are on सेम बेस, ये सब आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। सेम बेस, बेस क्या था, HF था, देखिए HF बेस था, बेस एंड इन बिटवीन पैरेलल लाइंस, इन बिटवीन HF पैरेलल टू AB या AB पैरेलल टू HF। तब क्या होता है, तब क्या होगा, एरिया ऑफ triangle HEF is equals to half the area of parallelogram ABFH, जो हमने शुरुआत में एक्सप्लेन किया था। ओके, अब हम क्या देखते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं। ओके, लेट इट बी 1। अब जिस तरह हमने देखा कि इसी बेस में ये ट्राइंगल था, तो ये ट्राइंगल इस कंप्लीट पैरेललोग्राम का आधा हुआ। सेम वे इस ट्राइंगल को भी देख लेते हैं, HGF, ये सेम बेस में है और इन बिटवीन सेम पैरेलल में है। तब क्या होगा, एरिया ऑफ HGF इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ HDFC। HDFC का आधा हुआ है, तो वही चीज़ हम, ये सब लिखने का दरकार नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली, कि एरिया ऑफ HGF, ऊपर वाला देखते हैं, एरिया ऑफ HGF इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ HDFC। ठीक है, हाफ द एरिया ऑफ HDFC का आधा हुआ है, इसको हम सेकंड मानते हैं। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करते हैं। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर हमको क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF प्लस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल HGF, नीचे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABFH प्लस हाफ HDFC, एरिया HDFC। ठीक है, ये हमको आया है। तब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर दिए। देखिए, ये जो ट्राइंगल है पिक्चर का ये जो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को ऐड करने से क्या होगा, EFGH हुआ, EFGH हुआ। तो हम वही दोनों को ऐड किए, ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा, एरिया EFGH हुआ। अब ये जो पैरेललोग्राम है,
और ये जो पैरेललोग्राम है, इन दोनों पैरेललोग्राम को जोड़ देंगे तो ए बी सी डी होता है, ठीक है। अब इसमें जो हाफ हाफ जो है वो तो कॉमन आ जाएगा, एरिया भी कॉमन आ जाएगा। अब इसको और इसको हम जोड़ते हैं तो क्या हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। हमको यही प्रूफ करना था। हमको क्या प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ई ऑफ जी एच इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। हमने वही प्रूफ किया कि एरिया ऑफ ई ऑफ जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। दैट्स ऑल प्रूफ। ओके, बस जो नियम हमने बताया है उस नियम को फॉलो करके इसको आप लोग देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सम समझ में आ जाएगा। सो we'll meet you in the next episode with some more interesting thing.